What is the title of the article? Diplomacy for Viksit Bharat. Now, why this article is very important? Because it links domestic policy with foreign policy. Right? Now, the new ambition outlined by Prime Minister Narendra Modi to make India a developed country, Viksit Bharat, by 2047 will demand significant changes in Indian foreign policy tradition. Some of those changes already set in motion in recent years must now acquire greater purpose and speed. But can India's foreign policy community get out of its old mindset? So, there was a chapter in India way, Dogmas of Delhi, right? We will read that chapter and we'll see how Delhi had entrenched itself in the old ways, and how the biggest problem of foreign policy establishment of India was that वो अपने ही उसमें थे कि अरे हम तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही होता है, हम कुछ नया नहीं करना चाहते, है ना, मतलब अपने ही डॉगमास में, अपने ही पास्ट के उसमें पड़े हुए थे वो. Our diplomatic discourse remains trapped in a framework that emerged when India was weak and vulnerable 75 years ago. The fears of a developing nation can't be the guiding principles for the diplomacy of a developed nation. बहुत important. The fears of a developing nation. As a developing nation, हमारे जो fears हैं, ठीक है ना, क्या fears हैं हमारे? कि there is a inherent bias towards developing countries by developed countries. United States or Britain or other developed countries, they do lot of biasness. They are partial towards developing countries. We are fearful that ऐसा ना हो कि ये सारा का सारा कार्बन एमिशन का ठीकरा हम ही पे फोड़ दें. ऐसा ना हो कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टंटेड कर दें. ऐसा ना हो कि हमारे साथ ये ग्रीन टेक्नोलॉजी शेयर ना करें. ऐसा ना हो कि न्यू इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज की मोनोपोली करके बैठे और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टंटेड कर दें. और इसके एक हमें झलक भी मिली थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया. बट द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज रिमेंबर एवरीथिंग बट एक्ट इन गुड फेथ. डोंट लेट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस become an obstacle in your future. Right? Again. Your global perspectives must necessarily change when you move from bottom of the scrum to the top of the heap. As you rise through the ranks, as you rise from a being least developed country to a developed country, see, it will be a tremendous thing for India. 1947 में जब हम आजाद हुए तो 33 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी. आज 70 साल पर हम हैं. 47 में हम 100 साल जब पूरे करेंगे, देखिए आप चाइना का रास्ता भी ले सकते थे. ये 1949 में जो है वो भी बिल्कुल इसी स्थिति में था, लेकिन वो जल्दी डेवलप हो गया. लेकिन ग्रोथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए. चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही कर रहा हो, लेकिन क्या पॉलिटिकल ग्रोथ कर रहा है? क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं लोगों के पास में? क्या फ्रीडम है लोगों के पास में? उइगुर मुस्लिमों का वो नाम नहीं रखने दे रहा, दाढ़ी नहीं रखने दे रहा, मस्जिदें नहीं बनाने दे रहा, हर तरह से जो है खत्म कर रहा. ताइवान में देख लीजिए, हांगकांग में देख लीजिए, तिब्बत में देख लीजिए, शिनजियांग में देख लीजिए. तो हमारी प्रोग्रेस, विकसित भारत का जो सपना है वो भले ही 100 साल में पूरा हो, और अब हम उस लॉन्च पैड पर हैं जहां से हम 25 साल में देश को विकसित करने का सपना देख सकते हैं, लेकिन वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ होना चाहिए. हमने कहा डेवलप्ड भारत, विकसित भारत. हमने नहीं कहा वृद्धि हो, ग्रोथ हो ना, ठीक. हमने नहीं कहा हमारी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सब, नहीं. हम कह रहे हैं विकसित भारत होना चाहिए. विकसित भारत कब होगा? जब सारे ग्लोबल गुड्स, सारे एसडीजीज हम अचीव कर पाएंगे, तब विकसित भारत होगा. ठीक. उसके बाद योर ग्लोब कहां है? While the geographic imperatives of a nation endure, the changing nature of the Indian economy, evolution of external conditions, emergence of new regional challenges, and shifts in the global power hierarchy all demand new foreign policy strategy. समझिए. While the geographic imperatives of a nation endure, the changing nature of Indian economy, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारे geographical imperatives भले ही सेम हो, कि हमारे बगल में पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, लेकिन
इकोनॉमिक चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तेजी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर एक बंदा नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रही है इकोनॉमी, ज्यादा प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ रहे हैं, ओला उबर चल रहा है, स्विगी चल रहा है, की इकोनॉमी चल रही है, लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहे हैं और फुल टाइम वर्क से लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क की तरफ जा रहे हैं, कि इकोनॉमी का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है। और क्या करना है, इसी चीजों के साथ में हमें अपनी स्किल को ऐसा अलाइन करना है कि जो दुनिया की डिमांड है वो हमारे लोग पूरी कर सकें, दुनिया में इंडिया ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा सप्लायर बन सके, और मल्टीलिंग्विज्म जो एनईपी का लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लोग लैंग्वेज में ट्रेन हो, हमारे यहाँ ट्रांसलेटर्स अच्छे हो, हमारे यहाँ इंजीनियर्स अच्छे हो, हमारे यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हो, जो लिंग्विस्टिक्स में भी दूसरे कंट्री के अच्छे हो, और वहां पर हमारा इंडियन पोटेंशियल, हमारा इंडियन वर्कफोर्स वहां पहुंचे, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी होगी क्या कि हम उनको स्किल दे रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे होंगे, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे, कहीं जाके डायस्पोरा में हमारे लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें। डोमेस्टिक पॉलिसी की पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यस, हाँ, मतलब कि ज्योग्राफिकली जो इश्यूज आपके 75 साल पहले थे वो आज भी, ठीक है। उसके बाद द फियर्स ऑफ अ डेवलपिंग नेशन कांट बी गाइडिंग प्रिंसिपल, सॉरी कहां पर थे, हाँ, एवोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नली क्या हो रहा है, कंडीशंस इवॉल्व हो रही है, कभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, कभी ताइवान हो रहा है, उसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इंडिया दूसरी दुनिया के लिए एक पीस का एक माध्यम बन रहा है। मैक्सिको के लीडर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 3 लोगों की कमेटी में होना चाहिए जो मीडिएट कराएंगे, वर्ल्ड में कंफ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड कराएंगे। इंडिया यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात कर रहा है, यूएनएससी में रिफॉर्म की बात कर रहा है। इंडिया जापान साथ आकर के यूएनएससी में परमानेंट सीट खोज रहे हैं, हमने G4 बना लिया है, हमने क्या कर दिया है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि देयर शुड बी एन ओपन, रूल्स बेस्ड, इक्विटेबल एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। इमरजेंस ऑफ अ न्यू इंक्लूसिव फिलोसफर वुमेन, इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल चैलेंजेस। क्या हो रहा है, हमारे रीजनल चैलेंजेस भी इमर्ज हो रहे हैं, और वो रीजनल चैलेंजेस क्या हैं, कभी आप देख रहे हो श्रीलंका में दिक्कत, कभी आप देख रहे हो नेपाल अपना मैप छाप देता है, कभी नेपाल में चाइनीज इम्प्रिंट बढ़ने लगते हैं, म्यांमार में चाइना प्रोजेक्ट करने लगता है, बांग्लादेश में चाइनीज आर्मी को, बांग्लादेशी आर्मी को चाइना अपने इक्विपमेंट सॉल्व देने लगता है, कभी आप देखते हो कि चाइना क्या करता है, अफगानिस्तान को ही बोलता है कि तुम सीपीसी का हिस्सा बन जाओ, कभी आप देखते हो कि पाकिस्तान को चाइना फंड करके क्या बोलता है कि भैया आप जो है अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंसेस फैलाइए, कभी आप देखते हो कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक बड़ा मेजर चैलेंज बन जाता है, पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा होता है कि अफगानिस्तान का हम यूज करेंगे कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर में आने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान क्या करता है, अपने यहाँ पर जो लेजिटिमेट टेररिस्ट हैं, चाइना क्या करता है, पाकिस्तान के उन टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस कमेटी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से बचाता है। ठीक, और इसके साथ साथ आप कभी कभी देखते हो कि चाइना क्या करता है, ईरान में इन्वेस्टमेंट करने लगता है, चाबहार में हमारे प्रॉस्पेक्ट्स को ढकेलने लगता है। चाइना क्या करता है, किसी मलक्का स्टेट में जाकर के अपना जो है वो दबदबा दिखाने लगता है, किसी इंडोनेशिया में, किसी मलेशिया में, किसी थाईलैंड में, किसी फिलीपींस के साथ लड़ने लगता है। चाइना क्या करता है, वियतनाम में हमारे प्रॉस्पेक्ट्स को कमजोर करने लगता है, वियतनाम के आसपास अपनी नेवल ड्रिल करने लगता है, वियतनाम में ओएनजीसी विदेश हमारा जो काम कर रही है, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कर रही है, उन सब चीजों को जेपरडाइज करने की कोशिश करता है। चाइना क्या करता है, जापान के ईजेड में मिसाइल्स फायर करने लगता है। चाइना क्या करता है, इंडो पैसिफिक का हमारा जो पूरा कंस्ट्रक्ट बन रहा है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। चाइना क्या करता है, हमारा जो एक स्टेबलिश्ड पार्टनर है, हमारा एक जो ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, उसको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। चाइना क्या करता है, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ठीक, आज यीशु मूड में ये रिकॉर्ड हो गया, कोई बात। And shifts in the global power hierarchy all demands new foreign policy strategies. ठीक, shifts in global power hierarchy का मतलब ही वही है कि यूएसए इज रिसीडिंग, यूएसए कह रहा भाई अपना देखो, चाइना ऊपर आ रहा है, फ्रांस ऊपर आ रहा है, जापान ऊपर आ रहा है, जापान शैकल से फ्री हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज बिकमिंग अ मेजर प्लेयर, ब्राजील बोल रहा है हम भी भाई कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपोलैरिटी आ रही है। While India is well on its way to becoming the third largest economy in the next few years, that does not necessarily mean it to be a developed nation. Many of the tasks of becoming a developed nation are indeed domestic, promoting social justice, internal unity, economic modernization, resilient political institutions, and deep bases of science and technology. समझिए,
इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन जाएगा, बट इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ करी है। डेवलपमेंट, इंडिया डेवलप्ड होने के लिए अभी भी इंडिया को क्या चाहिए, डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि सोशल जस्टिस प्रमोट करे। आपने देखा राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ क्या हुआ, कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा गलत बात है। देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश की यूनिटी के स्तर पर, समाज और धर्म की यूनिटी के स्तर पर कितनी गलत चीज है। जो लोग अपने आप को ब्राह्मण और ठाकुर और दुनिया बता रहे हैं, सबसे ज्यादा समाज, समाज मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक सोसाइटी, उसके विरुद्ध है। ठीक, तो सोशल जस्टिस को बढ़ाना, इंप्रूव करना, और सोशल जस्टिस कैसे इंप्रूव होगा, आर्टिकल 38 और प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एक्ट का सही से इंप्लीमेंटेशन कराया जाए। और क्या होना चाहिए, इंटरनली हम यूनाइट, ठीक, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, रेजिलिएंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि जुडिशरी ढही जा रही है या लेजिस्लेचर ढही जा रही है किसी के प्रेशर में, और डीप बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मैंने हमेशा एक बात बोली है, साइंस एंड टेक, ये क्या होने चाहिए, ये रीजनल लेवल पर, रीजनल प्रॉब्लम्स के हिसाब से वहां के जो लोकल साइंटिफिक इनोवेटर्स हैं वो उस रीजनल लेवल की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना। Three major foreign policy tasks present themselves in the hopeful journey to a Viksit Bharat. The first is the need to overcome the residual legacies of partition that continue to undermine Delhi's geopolitical position. Resolving the problems left over by partition on India's northwestern frontier looks quite hard, despite the efforts by successive PMs in the last 3 decades. पार्टीशन के बाद से हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहां पर आज भी इश्यूज चल रहे हैं और आज भी हम उनको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, Deterring the dangers from across the western frontier must remain a major priority until Pakistan is ready for a productive relationship with India. Meanwhile, Delhi must continue to build on the recent good work in overcoming the bitter legacies of partition in the east, including the settlement of the boundary dispute with Bangladesh. समझिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारे ईस्ट में बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश भी तो पार्टीशन से अलग हुआ था, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया, संबंध बेहतर कर दिया। और संबंध हमने इस तरह से बेहतर किया कि बांग्लादेश के साथ में हमारी जो लेगेसी है, बांग्लादेश के साथ में हमारे जो संबंध है वो बहुत मजबूत हो गए। और अभी हमने रिसेंटली 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया था, फिर कौन, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, इसका मतलब 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, लैंड बॉर्डर सेटलमेंट। ठीक, उसके बाद 101st से क्या किया था, जीएसटी। ठीक, आगे तो हमने क्या करा, हमने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव किए, हमने लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट वहां की सुलझा ली है। इफ पार्टीशन वीकेंड इंडिया, If partition weakened India, Delhi struggled to retain the regional primacy it had inherited from the British Raj in the subcontinent and the Indian Ocean. The reclaiming of a prominent role for India in the region can't be by fiat, but by making cooperation with Delhi more attractive to the neighbouring elites in the subcontinent and beyond. देखिए, जब पार्टीशन हुआ तो हमने क्या क्या खोया, हमने खोया कराची और ग्वादर जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कह सकते हैं मकरान कोस्ट ही खो दिया हमने। मतलब पीपल डोंट नो द हिस्ट्री अबाउट इट, हमने पूरा मकरान कोस्ट खो दिया, हमने सिंध कोस्ट और मकरान कोस्ट दोनों खो दिए। ठीक है ना, हमने जब पार्टीशन हुआ तो हमने क्या खोया, हमने इंडस के अराउंड प्लेन्स खो दिए, हमने फर्टाइल लैंड्स खो दिए। जब पार्टीशन हुआ तो हमने क्या खोया, हमने बहुत बड़ा कल्चर और ट्रेड सेंटर लाहौर, मुल्तान खो दिया, इवन पेशावर। ठीक है ना, और उससे भी ज्यादा आपका ये बलूचिस्तान में जो सेंटर्स थे। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की जो पोजीशन थी, हमने उसकी स्ट्रेंथ तो आज, मतलब हमने वो पार्टीशन के बाद वी वर स्मॉलर। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें कंट्रीज को अट्रैक्ट करना है, हमें सागर करना है, तो हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी कि हर एक कंट्री को ये दिखे कि इंडिया के साथ जाने में उनका फायदा है। वो कब होगा,
when you will develop your national capabilities. When you will develop your national capabilities, what will happen? Countries will say that, okay, we want technology from you, we want investment from you, we want trade from you, we want like skilling, help us in skilling our people, right? So when you will develop your national capabilities, then people will come to you and say that, okay, help us. So to gain a position of strength in global world order, you must be Viksit developed. The initiatives of the last few years on intensifying connectivity, trade ties, and security partnerships with the neighbors will need a sustained push in the coming years. India also needs to double down on strengthening regional and trans-regional institutions. As the world's third largest economy that wants to be a developed state, India must look beyond the immediate neighborhood to more effectively engage with Africa, Latin America, and Oceania, where in Delhi's footprint remains light despite some recent initiatives. क्या कह रहे हैं? क्या रिसेंटली हमने फिपिक तो खोल दिया, हमने इंडिया अफ्रीका फोरम हमने लॉन्च क्या कर दिया, इंडिया अफ्रीका फोरम के हमने वो करने लगे, फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करने लगे. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हमने ट्रेड कॉन्सुलेट वगैरह रख दिया, अपनी हमारी कंपनीज वहां पर जाने लगी, ये सब होने लगा. लेकिन उसके बावजूद भी अभी इन कंट्रीज से हमारा एंगेजमेंट उतना अच्छा नहीं है. यानी कि क्या है कि सिर्फ सागर में मत पड़े रहिए, सिर्फ नेबरहुड में मत पड़े रहिए. गो बैक टू द एक्सटेंडेड नेबरहुड. ट्रूली एम्ब्रेस वसुधैव कुटुंबकम. Indian presence must be on every continent, in every capital, and in every country. Only then you can assume the power of strength. Only then you can say that, okay, I am in a position from where I can say that I am in the world. Okay. The second is about coping with the growing power gap with China. Beijing has been the greatest beneficiary of India's partition. China unified itself after an extended civil war in 1949. Just after India chose to be divided in 1947, Beijing has leveraged the divisions within the subcontinent to constrain India. Delhi's ability to raise its level of engagement in the extended neighborhood and beyond also runs into substantive Chinese presence. बहुत अच्छा पैराग्राफ. इंडिया के डिवीजन से सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो चाइना को हुआ. क्यों? क्योंकि हमारा जो छोटा वाला पुत्र है, बड़ा वाला पुत्र, छोटा पुत्र दूसरी तरफ है, यानी पाकिस्तान. कल वो देखा होगा ना, चंदा ने पूछा तारों से, ठीक है, तुमने इनको नहीं दिखाया क्या? अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ठीक. तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंडिया डिवाइड हुआ तो चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को अपनी तरफ मिला लिया और पाकिस्तान ने कंधे पे रख करके इंडिया की तरफ बंदूक चलाने लगा. और इंडिया, उसने पाकिस्तान को हमेशा रिसोर्सेज दे करके ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान भारत से उलझता रहे, तो भारत की सारी एनर्जी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने में जाती रहे. अब भारत का डिफेंस बजट लगातार बढ़ता रहा, उसकी वजह से तो क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो अपने आप को सही से डेवलप नहीं कर पाए. उसने अपने आप को यूनाइट कर लिया, भारत के डिवीजन का मजा लिया और भारत के डिवीजन का फायदा उठाया. और उससे हुआ क्या, जो मकरान कोस्ट जिस पर चाइना मोनोपोली किए बैठा हुआ है, ग्वादर पोर्ट, वो हमारा हो सकता है, हमारा था ही, मतलब ठीक है, लेकिन वो चला गया. ठीक. India has compounded that problem over the decades by persistent romanticism about China and overestimating the potential for collaboration with Beijing. Whether it was Nehru's notion of an area of peace in Asia for the pursuit of a multipolar world since the 1990s in partnership with Beijing. समझिए, लेखक क्या कह रहा है, ये मेरे विचार नहीं है. लेखक क्या कह रहा है कि इंडिया ने जो है अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लिया by romanticizing, by being over enthusiastic towards China, by trusting Beijing more, and by trying to surrender itself to Beijing. ऐसा लग रहा था कि उनकी चरण पादुकाएं रगड़ रहे हैं वो, कहने हमें कुछ दे दो, है ना. वो मैंने आपको द लॉन्ग गेम वाली कहानी सुनाई थी, ठीक है ना. ऐसी स्थिति में होता क्या है, बीजिंग की जो पोजीशन वो स्ट्रांग होती चली जाती है, बिकॉज इंडिया वाज ट्रीटिंग एज अ बिगर प्लेयर. इंडिया वाज डेस्परेट टू हैव रिलेशंस और ट्राइंग टू गो एक्स्ट्रा माइल टू हैव रिलेशंस विद चाइना, एंड चाइना लेवरेज्ड दैट वेरी वेरी ब्रिलियंटली. ठीक. तो इन चाइना के साथ हमने ओवर एंथुजियाज्म या ओवर रोमांटिसाइज करके रखा. चाइना के प्रति हम ज्यादा सकारात्मक हो गए, हमें लगा चाइना हमारा बड़ा अच्छा मददगार है और बड़ा अच्छा कंट्री है, लेकिन चाइना ने हमें हर बार धोखा ही दिया है. मतलब लेट्स नॉट से दैट, इट विल बी टू बैड फॉर
in the view of foreign policy establishment. But yeah, there is trust issues. Let's say. Okay. Yeah? Let's not say that. The relationship has lot of potential, but it suffers from trust deficit politically. Right? Since the 90, yes, the first came crashing down in 1962, and the second now confronts the nightmare of a unipolar Asia dominated by an assertive China. 1962 में जो आपने नेहरू जी ने गलती करी, मतलब 1962 से पहले नेहरू जी ने जो गलती करी, हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील फलाना डिगाना, है ना, तिब्बत छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, उससे क्या हुआ, 62 में चाइना ने पकड़ के रगड़ दिया मैं। और उसके बाद 1990 के बाद हमने जो ओवर एंथुजियाज्म चाइना की तरफ दिखाया है, उसकी वजह से क्या हुआ, आज चाइना एक सुपर पावर बन के हमारे सामने खड़ा है और पूरे एशिया को मोनोपोलाइज करने के लिए, यूनिपोलैरिटी एशिया में उसने स्थापित कर लिया, यानी कि एशिया का सोल लीडर बन करके उभरने लगा है, आया है। ध्यान रखिए। To make matters worse, the Chinese military can choose its time and place today to raise the temperature on the disputed Sino-Indian border, as it has done in 13, 14, 17, and 20. All the policies outlined by the Modi government to address the China challenge, securing our frontiers, retaining India's regional position, strengthening India's manufacturing sector, improving domestic technological capabilities, and producing more weapons at home, lead us to the third task. समझिए, एक पैराग्राफ में इन्होंने बता दिया कि इंडिया क्या क्या कर रहा है चाइना से लड़ने के लिए। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ठीक है। क्या क्या कर रहा है? अपने बॉर्डर सिक्योर करना, बॉर्डर पर 1 इंच भी ना देना, इंडिया की रीजनल पोजीशन को रिटेन करना, रीजनल लीडरशिप की पोजीशन को रिटेन करना, यानी बिम्स्टेक है, आसियान है, इन सबके साथ में कॉपरेशन, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पीएलआई को बढ़ाना और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। अभी आपने देखा है, थोड़े दिन पहले हमने एक वैभव समिट करी थी, हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की बात कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं और प्रोड्यूसिंग मोर वेपन्स एट होम। बाहर के लोगों से वेपन लेने की बजाय जिनका चाइना को नॉलेज हो या जिनका चाइना को जिनके बारे में जानकारी हो, तो चाइना को स्ट्रेटेजिक एज दे सकता है, हम अपने घर पे ही वेपन बना रहे हैं। घर पे मतलब ऐसा नहीं कि फैजल खान की तरह आप कट्टा तमंचा बना रहे हैं, कहने का मतलब डीआरडीओ, एचएएल और बाकी जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो इंडिया में ही वेपन्स बना रहा है, व्हिच इज गिविंग अस स्ट्रेटेजिक एज, ठीक है, जिसमें इनका भी कार्यालय थोड़ा बहुत काम करता है। इट इज अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स with other major powers. But collaboration with other great powers has been hobbled by old ideas of non-alignment and strategic autonomy. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तीसरा सबसे बड़ा काम क्या है, आपको जो बड़े पावर्स हैं, जैसे रशिया है, जैसे यूएसए है, उनके साथ भी बढ़िया रिश्ते बना के चलने पड़ेंगे। और इन रिश्तों को बनाते रहने के दौरान जो पुराने डॉगमास, पहला डॉगमा कौन सा, नॉन अलाइनमेंट, कि हम एक खेमे में ना दिखें, दूसरे पार्टी में ना दिखें, हम अपना अलग चलेंगे, एकला चलो रे, वो सब नहीं। और दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऐसा ना हो कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के चक्कर में यूएसए के साथ कॉपरेशन करने से चूक जाएं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब कि नहीं नहीं भैया, हम तो हमारे ऊपर किसी की नहीं चलती है, और पता चला यूएसए के साथ में आपको लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट करना था, आपने कहा नहीं नहीं यूएसए के साथ नहीं करेंगे वरना लोग कहेंगे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रही। ऐसा नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपकी है, ठीक है ना, लेकिन कॉपरेशन करने से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं खत्म हो जाती, ठीक है। All countries practice strategic autonomy to the extent they can. It is not a special characteristic of Indian diplomacy. India's problem as it becomes the third largest economy is not about seeking autonomy from other powers, but joining them in shaping a subtle balance of power system in the world. Stable balance of power system in the world. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तो इंडिया का कंसर्न ये नहीं होगा कि वो दूसरों से अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सीख करे, ना 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 ना, इट विल नॉट बी अ बैलेंसिंग पावर। Seeking strategic autonomy from others, it means you are a balancing power. No. It will cooperate with the leading powers and it will shape this world order. It will ensure that there is stability in the world order. This might involve both competing and collaborating with other major powers, sometimes doing both at the same time. Building partnerships is not ceding ground to the other powers, but negotiating mutually beneficial terms in dealing with complex problems. समझिए, building partnerships is not ceding ground to other powers but negotiating mutually beneficial terms in dealing with complex problems. While much of the domestic debate on India's Ukraine policy has been rooted in the familiar framework of external pressures, Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has praised Delhi's successful pursuit of its own interest. If India can do this with a $3 trillion economy, its ability to engage with other powers can only improve along with the growth of its comprehensive national power. क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं देखिए $3 ट्रिलियन बड़ा छोटा टारगेट है, ठीक है ना, मतलब बाय 2030 आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कहाँ हो, मतलब 5-10 स्मॉल नंबर्स, ठीक है ना, क्योंकि 3 तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 3 से 6, 6 से 12, 12 से 20 पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह के इकोनॉमिक स्फेयर में होंगे ना, जहां पर यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं, जहां पर ओवरनाइट ग्रोथ हो रही है, जहां पर सक्सेस ओवरनाइट ग्रोथ स्टोरीज हो रही है, जहां पर वहां पर आपका इकोनॉमिक माइट बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जैसे यूक्रेन की क्राइसिस में इंडिया ने किया, अपना इंटरेस्ट परस्यू, और अगर ये वाला काम इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन के कर ले, तो इसका मतलब क्या है? लोगों के लिए बड़ी इकोनॉमी होगी, बड़ा मार्केट होगा, तो इंडिया अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर भी इंक्रीज कर रहा है और उसकी वजह से ज्यादा लोग उससे एंगेज भी होंगे, ठीक। तो इंडिया विल बी एबल टू मैनेज ग्रेट पावर रिलेशनशिप्स बेटर when इंडिया हैज ग्रेटर सीएनपी, एंड ग्रेटर सीएनपी विल कम when इंडियाज इकोनॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल becoming the third largest economy in a developed society can't just be about geopolitics and balance of power. It is also about global leadership in managing the consequences of the unfolding technological revolution, stabilizing the economic order, and addressing the challenges of climate change and pandemics. Do you understand the last point of shifting contours of foreign policy? Addressing the global needs. आज अगर ग्लोबल नीड है कि भैया लगातार टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहे हैं, एक लाइन याद करिए, क्या लाइन थी? The control over emerging technologies will ensure who leads the world. जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, एआई है, एमएल है, इन पर जिसका कंट्रोल होगा वही फ्यूचर में दुनिया को लीड करेगा, उसी के पास ज्यादा एज होगी। और उसके अलावा जो आज इकोनॉमिक ऑर्डर स्टेबल चल रहा है, उसको स्टेबलाइज करने में इंडिया एक बड़ी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, और उसकी वजह से इंडिया इज स्टिल अ बिट, नॉट टू दैट डिग्री, क्योंकि अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, बट टू अ डिग्री India is still insulated from the challenges. Next point, and addressing the challenges of climate change. ये सब क्या है? ग्लोबल चैलेंज. India's innocent international. अगर इसको थोड़ा सा हम क्रूड भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे? क्या था वो? बीइंग रिस्क एवर्स, अपॉर्चुनिटी डिनायल, ठीक है ना, कि उस समय हमने रिस्क नहीं लिए, जिसकी वजह से हमने अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया, जिसको उन्होंने कहा है इनोसेंट इंटरनेशनलिज्म, कि हम यूएसए की तरफ नहीं जाएंगे, यूएसएसआर की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों, और हम नैम करेंगे। सून रैन हेडलॉन्ग इनटू हार्श रियलिटीज इन द हाई हिमालय। हाई हिमालय मतलब 62 में जो चाइना ने हमको पटका, उस दौरान हमें समझ में आया कि हमें वहां तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना तो चाइना, ना तो ब्रिटेन, ना तो अमेरिका हेल्प कर रहा है, ना यूएसएसआर हेल्प कर रहा है। The uncritical acceptance of globalization in the early 21st century has created economic problems of its own. On its way to 2047, Delhi will have to temper its soaring universalism with geopolitical sensitivity and combine the pursuit of multilateralism at the UN, G20, WTO with coalitions of like-minded nations. What do you call that? Delhi will have to temper its soaring universalism. Delhi has a temptation of engaging with everybody, of trying Sarve Bhavantu Sukhna Sarve Santina Ramaya, of trying Vasudhaiva Kutumbakam, of trying to please everybody, of trying to do vaccine Maitri, of trying to do Operation Ganga, of trying to do HADR operations. Delhi has this irresistible urge to do good for all. But while doing that, Delhi has to temper this urge, to reduce this urge, and to ensure that it is geopolitically sensitive. Prioritize, ये देश मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसको अच्छे से काम करेंगे इस पर, ठीक। एंड कंबाइन द परस्यूट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, और इन सब देशों को हम यूएन में, G20 में, WTO में, जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं, जो हमारा कंसर्न शेयर करते हैं, G4 जैसे कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर के इनका रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। गेटिंग पावर एंड प्रिंसिपल टू रीइंफोर्स ईच अदर will help herald India's arrival as a developed nation and major power. Believe me, the way he ends his articles is just amazing and second to Dr. Jaishankar. Getting power. You are increasing your comprehensive national power, so you are increasing your power. And principles. You have values, universal values of non-violence, of helping everybody, when they reinforce each other. Because when
See, China also has power. But without value, if you have power, it will make you a necessary evil, and you will not be portrayed as a responsible player. So for India to become to appear as a responsible player, what will happen? What you will need? You need a responsible player. And how you will become a responsible player? When your power will be guided by ethics, your value. That is. Thank you.